Good morning, children. Today we will read Michael Goes Climbing. In this video, we will read the story. The previous question, which is given in C1, is there any naughty boy or girl in your class? Or who is he or she? How does he or she behave in the class? And what do others think of him or her? Discuss with your partner. This question I have already told you in my previous video of the key. You can go through that video for this answer. And if you want to give your own answer, you can give it in the comment box. Now we will read the interesting story about a little naughty boy called Michael. As you know, children, that each and every child is naughty, but Michael is more mischievous. Mischievous means शैतान टाइप का बच्चा, बदमाश बच्चा. Let's see what he does. About 300 years ago, two Dutch women, Dutch, whom we call Dutch, do you know, children? The people of Netherlands are called Dutch. This is the story of Netherlands. About 300 years ago, 300 साल पहले की बात है. Two Dutch women were talking to each other. एक दूसरे से बात कर रही थी. Suddenly one of them stopped and pointing towards a little boy said. अचानक क्या हुआ कि उनमें से एक रुकी और एक लड़के की तरफ पॉइंट आउट करके बोली, there goes that spoiled brat, Michael. Brat means a boy. Spoiled means बिगड़ा हुआ, बर्बाद. वो है माइकल, एक बिगड़ा हुआ बच्चा. Every time I see him, I feel like hitting him. What she said, that हर बार जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसे मारूं. Why? Asked the other woman. I have never seen such a spoiled, proud and mischievous boy in my life, said the first woman. He is never happy unless he is making mischief to attract others' attention. What she said, जब तक वो दूसरे को परेशान करने के लिए कोई मिसचीफ नहीं करता है, कोई शैतानी नहीं करता है, तब तक उसे अच्छा नहीं लगता है. और मैंने ऐसा स्पॉइल्ड, प्राउड एंड मिस्चीवियस बॉय यानी बर्बाद, घमंडी और शैतान लड़का अपने जीवन में नहीं देखा. She said means the first woman said to the second woman. Now what happens, children? The other woman said, well, mischief sometimes makes a person courageous. Courageous means साहसी. तो दूसरी औरत क्या बोलती है कि कभी कभी मिसचीफ जो होता है मीन्स शैतानी जो होती है, बदमाशी जो होती है, वो जो बच्चों को या किसी आदमी को वो साहसी बनाता है. He seems to be a bold boy. और ये देखने में भी bold boy लग रहा है. Meanwhile, the boy had reached near the church in the marketplace. तब तक क्या हुआ कि वो लड़का जो है चर्च के पास पहुंच गया था, जो कि मार्केट प्लेस में था. Where is the church? In the marketplace. Workmen had been slating the church spire and had left their ladder near the trapdoor. वर्कमैन यानी जो लेबरर थे, जो मजदूर थे, वो क्या कर रहे थे कि चर्च के स्पायर को, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज चर्च स्पायर जस्ट बिलो द गोल्डन बॉल. चर्च के स्पायर को वो स्लेटिंग कर रहे थे, जैसे टाइल्स बैठाते हैं ना, दैट जस्ट लाइक दैट दे वर डूइंग स्लेटिंग कर रहे थे. और उन लोगों ने अपना सीढ़ी ट्रैप डोर के नज़दीक ही छोड़ दिया था. मीन्स जिस दरवाजे से वहाँ स्पायर तक पहुँचा जा रहा था ना, वहीं पर छोड़ दिया था सीढ़ी. माइकल लुक्ड एट द स्पायर एंड एन आइडिया केम टू हिज माइंड. एट द स्पायर एंड एन आइडिया केम टू हिज माइंड. अचानक से माइकल ने उस स्पायर को देखा और एक आइडिया उसके माइंड में आया. ही सेड टू हिमसेल्फ, लेट मी क्लाइंब अप द स्पायर. I would be the first person in the town to stand on the golden ball beneath the weather vane. You can see, children, just above the golden ball there is a symbol like thing
एक स्टैंड है जिसके नीचे हैन के जस्ट नीचे कुछ बंधा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेदर वेन। ये मौसम बताने के लिए पहले लोग इसी का यूज किया करते थे। ओके, और इसको देखकर मौसम का पता करते थे। जैसे मैग्नेट नॉर्थ साउथ हो जाता है ना, जस्ट लाइक दैट ये भी वेदर बताने के लिए काफी था उस समय। तो माइकल ने क्या सोचा कि मैं इस शहर का पहला आदमी बन जाऊंगा जो गोल्डन बॉल जो कि वेदर वेन के नीचे है वहां पे खड़ा हो जाऊंगा। माइकल turned his eyes around and was happy to see that no one was looking at him. माइकल ने चारों ओर आंखें घुमाई तो उसने देखा और खुश हुआ कि कोई भी उसे नहीं देख रहा था। He quickly began to climb up the ladder and soon reached the top of the spire. He wished all to see him standing right at the top like a hero. वो जल्दी ही लैडर के पास चढ़ के सीधा स्पायर के टॉप पे चढ़ गया और उसकी इच्छा थी कि लोग उसे वहां खड़े देखें जस्ट लाइक अ हीरो। One man saw Michael holding the weather vane, and soon the place near the church was full of people with their mouths wide open and eyes fixed on him. You can see here in this picture, all people are looking at him. तो एक आदमी ने माइकल को देखा वेदर वेन को पकड़े हुए, और जल्दी ही वो जगह यानी चर्च के पास वाली जगह लोगों से भर गई और उनके मुंह खुले के खुले रह गए, आईज उसी पर फिक्स्ड हो गए। माइकल वॉज वेरी ग्लैड एंड प्राउड ऑफ हिज एडवेंचर। माइकल बहुत खुश हुआ और उसे अपने एडवेंचर पे बहुत प्राउड भी हुआ। After some time, Michael decided to come down and leaned over the ball. कुछ समय के बाद माइकल ने डिसाइड किया नीचे आने का और वो बॉल पे झुका क्योंकि सीढ़ी पे उतरना था उसको। To his surprise, the ladder had gone. लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लैडर वहां था ही नहीं जहां से वो चढ़ा था। ओके, लैडर वॉज मिसिंग। The workmen had taken it away. क्योंकि जो वर्कमैन थे लेबरर वो उसे ले गए थे। A sudden feeling of fright, despair and sickness came over Michael. अचानक से एक डर जो है उसके अंदर आ गई। डर, निराशा, फ्राइट मीन्स डर, डिस्पेयर मीन्स निराशा एंड सिकनेस नर्वसनेस माइकल में आ गई। बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। ऑफ कोर्स द पीपल वुड कम टू हेल्प हिम। हाँ, लोग उसकी मदद जरूर करते, बट टू वेट फॉर रेस्क्यू वुड बी अ पुअर सॉर्ट ऑफ एंड टू हिज एडवेंचर। लेकिन अगर लोग उसे बचा लेते तो ये उसके एडवेंचर का एंड हो जाता। दैट्स वाई व्हाट ही डिड, द स्पायर ऑफ द बेस ऑफ द बॉल वॉज ओनली हाफ स्लेटेड। जो स्पायर था बॉल के ठीक नीचे वाला वो सिर्फ हाफ स्लेटेड था, यानी कि पूरी तरह से उसे स्लेटेड नहीं किया गया था। अभी काम चल ही रहा था तो स्लेट थोड़ा थोड़ा उखड़ा हुआ था। तो माइकल ने क्या किया, माइकल ब्रोक अ स्लेट विथ हिज टो एंड गॉट अ फुट होल्ड। अपने पैर के उंगली से किसी तरह से स्लेट में मार मार के उसने तोड़ दिया और वहां पे पैर रखने लायक जगह बना ली। But it was not possible to slide down with his arms around the ball as the middle of the ball was too big for his arms. और वो एक छोटा बच्चा था, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो जो है किसी तरह से अपनी आर्म से, अपने बाह से बॉल के मिडिल में पकड़ के किसी तरह लटक के नीचे आए। एक ही रास्ता था उसके पास, I'll have to leave the ball quickly, कि वो बॉल को तेजी से छोड़ दे। एंड ग्रास्प द स्पायर बिलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो वो सोचा कि एक ही रास्ता है मेरे पास कि बॉल को मैं छोड़ दूं और तेजी से नीचे आ जाऊं और स्पायर को पकड़ लूं। इट वॉज डेंजरस, ये खतरनाक तो था। वन फॉल्स स्टेप एंड ही वुड बी डेड ऑन द हार्ड ग्राउंड बिलो, बट देयर वॉज नो अदर वे। लेकिन कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। स्लोली माइकल slid down, left the ball and then quickly caught the base of the ball. धीरे धीरे माइकल ससरता हुआ बॉल से थोड़ा सा नीचे उतरा बॉल के लेफ्ट साइड से, और फिर उसने जल्दी से बॉल को छोड़ के उसका स्पायर पकड़ लिया। एंड ही वॉज सक्सेसफुल, सफल भी हुआ वो।
He started climbing down rapidly and finally reached down safely. वो नीचे जल्दी जल्दी उतरने लगा और ग्राउंड पे सेफली पहुंच गया. The streets were filled with white-faced people wiping moisture from their foreheads and dreading his mischiefs. स्ट्रीट जो है पूरे वाइट फेस्ड पीपल से भर गया, यानी कि सबके चेहरे सफ़ेद हो गए थे. सब लोग अपना पसीना पोंछ रहे थे सर में से और डरे हुए थे उसके मिस्चीफ से. माइकल kept on with his mischief, लेकिन माइकल अपनी शैतानियां करता रहा आगे भी. His father, who had lost all hope from him, sent him to sea. उसके पिता जो उस पर से सारे अपनी आशाएं खो चुके थे, उन्होंने उसे सी में भेज दिया, समुद्र में. After many years, one day an old lady visited her sick neighbor and asked. कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि एक ओल्ड लेडी अपनी बीमार पड़ोसन के घर आई और पूछा, हैव यू हर्ड द न्यूज़? क्या तुमने वो न्यूज़ सुना है? द इंग्लिश फ्लीट, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का, ओके, विच बिलोंग्स टू इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश एंड फ्लीट मीन्स ग्रुप ऑफ शिप्स. इंग्लिश फ्लीट हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड. इंग्लिश फ्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है. व्हाट अ विक्ट्री फॉर आवर लिटिल नेबर. क्या विजय है, ठीक है, कैसी जीत है हमारे छोटे से पड़ोसी की. छोटे से पड़ोसी मीन्स दैट बॉय माइकल. डू यू रिमेंबर द डे ही क्लाइंब द चर्च स्पायर? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब वो चर्च स्पायर पे चढ़ गया था? हु कुड हैव गेस्ड देन दैट द होल वर्ल्ड वुड रिंग विद द नेम ऑफ एडमिरल माइकल जून दे रॉयटर. कौन जानता था उस दिन, कौन गेस कर सकता था कि पूरा विश्व जो है वो एक ही नाम से गूंजेगा, और वो नाम क्या था? एडमिरल माइकल जून दे रॉयटर. Okay children, hope you like this story. Subscribe my channel, like it, comment on it and share it with your friends. Thank you.